Okay. Chalo, good evening, all of you. Let us see the next part in this chapter. Okay, so we have done with the numericals. देखो ठीक से हमने 17th न्यूमेरिकल तक किया था शायद, राइट? तो लेट अस कंसीडर दिस 18th न्यूमेरिकल हियर. Okay, so what is the 18th numerical? I'm just writing it here on the board. It tells us that a capacitor of 100 microfarad of 100 microfarad and a coil of 0.5 Henry, okay, are connected in series. इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया with 110 volt and 50 hertz सप्लाई. ठीक है, तो एसी सोर्स के साथ हमने उसको कनेक्ट किया है. कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द IRMS. ओके, कैलकुलेट द IRMS, ये हमको ढूंढ के निकालना है. यस, सो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट? सी हियर, सबसे पहले हमको ये डायग्राम बनाना है इसका. ये सपोज एसी सोर्स जिसके साथ हमने सीरीज में दो चीजें कनेक्ट की है, एक है कैपेसिटर और दूसरा है इंडक्टर. और जब हम ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हमको IRMS का वैल्यू निकालना है. तो उसके लिए देखो ठीक से, द EMF कैन बी गिवन हियर टू बी E is equal to E naught sin omega t, where E naught is not given, ERMS is given actually. ये जो EMF दिया है ना 110 वोल्ट जो EMF दिया हुआ है वो एक्चुअली ERMS है. ठीक है ना, तो वो RMS EMF होता है हमेशा, याद रखो ठीक से. तो इसलिए ERMS जो है वो हमारा 110 वोल्ट बन गया, नो डाउट. और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, करेक्ट है. सो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, F is here 50 hertz, no doubt. And using this we want to find out the IRMS. अभी IRMS निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? IRMS is always equal to ERMS upon Z in case of a LCR सर्किट, करेक्ट है. तो LCR सर्किट के अंदर ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, नो डाउट. लेकिन Z के लिए जो है ना, Z इक्वल टू क्या होगा? Z मतलब impedance which depends on resistance, inductance and capacitance. But as resistance is not given here in this example, so we can just say that resistance is 0 and the formula for impedance is root of R square plus XL minus XC का whole square, जिससे हमको मिलता है Z is equal to root of R तो है ही नहीं इस सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इसलिए फिर यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, प्लस XL जो कि हमको सेपरेट निकालना होगा using the inductance, and XC is to be found out from this capacitance. So that we will do it first. तो पहले हम वो कम कर देंगे. तो देखो XL का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? It is 2 pi FL, right? So here if we just replace this 2 pi मतलब 22/7 या 3.14 we can say, and frequency is going to be 50 and multiplied with inductance which is 0.5. okay, so ये 0.5 और अभी देखो 50 इंटू 2 कितना होता है? 100 बनता है. 100 इंटू 3.14 becomes 314 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मींस इसका आधा जो 157 बनता है ओम. ओके, और दूसरा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि XC जो है, XC भी हम निकाल सकते हैं आराम से. XC which is 1/2 pi FC, करेक्ट है, where 2 into pi means 3.14 again, into F means frequency which is 50 hertz, and finally capacitance which is 100 microfarad. So it will be 100 microfarad मतलब 100 into 10 raised to minus 6 मतलब वो 10 raised to minus 4 हो जाएगा directly, right? And then we can just again we multiply this 50 and 2 here so as to become 100, and that 100 mixed with this 10 raised to minus 4 becomes 10 raised to minus 2 actually. So we can just write it as
1 upon 3.14 into 10 raised to minus 2, so that if we just take the reciprocal of this by using the reciprocal number table which already we have here, so we can just get it as reciprocal of 3.14. How much comes out to be? ठीक है, नहीं तो log of 1 minus log of 3.14 जो कि 0.0000 minus 3.14 का log कितना बनता है? 0.4969, जिससे ये बन रहा है हमारा ये 0, तो ये 10 बनेगा, ये 9 9 9 and this is bar 1, so it will be 1 3 0, here it is 5 and bar 1 as it is. तो अभी एंटीलॉग ऑफ 5031 कम्स आउट टू बी, तो 50 का हमको 3 में और 1 में मीन डिफरेंस उसमें ऐड करके 3185 मिलता है, 3185. ओके, सो इट विल बी एक्चुअली 3185, but 3.185 into 10 raised to minus 1 becomes actually 0.3185. So we can just write it as 0.3185, and this 10 raised to minus 2 goes up and becomes 10 raised to plus 2, so that it becomes 318.5 ohm. This is actually going to be the value of xc. But as we can just see here from this xl minus xc ka whole square, that is going to become z. So z will be actually equal to, तो ये 0 स्क्वायर तो 0 ही होता है, 0 प्लस ये ऐड करो ना करो एक ही बराबर होता है, और इसलिए यहाँ पे xl माइनस xc का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो फिर तो वही मिल जाएगा हमको, z will actually be equal to simply xl minus xc, obviously mod of that because it cannot be negative. So ये जो रूट और स्क्वायर करके जो मॉड यहाँ पे हमको मिल जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं xl minus xc. xl कितना है देखो इधर 157, so we have to think of the magnitude of 157 minus 318.5, so here 318.5. तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो देखो कितना आता है, 8 minus 7 is 1.5 as it is here, 1 minus 5 मतलब 11 minus 5 comes out to be 6, and here it will be 2 नहीं 1, so it comes out to be 161.5, correct. So 161.5 ohm, and that is obviously positive because we have taken the mod. So this is actually the value of z, that is impedance. Once you get this impedance, now you can just get the current, RMS current flowing through the circuit by using this formula. IRMS is equal to ERMS upon Z. So what is ERMS? It's 110 here. So here it will be 110. That is to be divided by this 161.5. So if we just divide it by that, then we can be able to get the current here. That is 110. अब देखो 110 का log निकालो कितना आता है, 11 का देखो 0414. ओके, तो 0414 ये बन गया 110 का log, और 161.5 का log अगर निकालेंगे तो वो तो मतलब 16 का 1 में और 5 में हमको देखना है, जो कि 13 मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो वो बनेगा 20 and 81, करेक्ट है, 2081. So it is 2081, and here it will be 2 point only, and if you just subtract this here, so this is 3, here it will be 11, this is 3, so it will be 3 here, and 3 minus 0 is 3 again, and here it will be 10, and here it will be 1, so 10 minus 2 is 8, and here it will be bar 1. So 8333 का अगर एंटीलॉग निकालते हैं तो मतलब वो 83 का हमको 3 में और मीन डिफरेंस भी 3 में देखना पड़ेगा, जो कि 5 है, तो 6813 बनता है, 6813. So point will be after first digit and into 10 raised to bar 1, ये जो minus 1 है इससे वो 0.6813 बन जाएगा. That means approximately the current will be 0.7 ampere. Okay, इसको हम 0.7 ampere लिख सकते हैं. This is the RMS value of current flowing through this circuit, no doubt.
ओके यस चलो नेक्स्ट वन find the capacity of capacitor which when put in series with a 10 ohm resistance make the power factor equal to 0.5 okay तो देखो ठीक से यहाँ पे ओके पहले इसमें कुछ हमने गड़बड़ किया है क्या चेक करो एक बार ठीक से क्योंकि आंसर वहां पे 0.816 दिया हुआ है लेट अस चेक द वैल्यूज देखो डिफरेंस जो है 318.5 माइनस 157 161.5 करेक्ट है और 110 डिवाइड बाय 161.5 comes out to be 0.6811 वो भी करेक्ट है ठीक है सो मे बी टेक्स्ट बुक में कुछ गड़बड़ होगा आंसर उसमें गलत दिया है ठीक है सो द करंट RMS करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज नॉट 0.816 एक्चुअली इट इज 0.7 एम्पियर बिकॉज रेजिस्टेंस इज ओके रेजिस्टेंस भी दिया है क्या ओके 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 तो रेजिस्टेंस हमने लिया ही नहीं ना यस रेजिस्टेंस हमने लिया ही नहीं राइट इसलिए प्रॉब्लम हो गया देखो ठीक से रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज गिवन ऑलरेडी ठीक है कॉइल ऑफ 0.5 ओम रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 100 ओम तीनों सीरीज में कनेक्ट किए हुए मतलब रेजिस्टेंस भी उसमें है ऑलरेडी राइट तो ये रेजिस्टेंस 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है तो वो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा उसका स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से यहाँ पे हमको आंसर थोड़ा अलग मिलेगा तो इट्स ओके मेथड समझ के लो ठीक से तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर मतलब कितना आने वाला है एक्चुअली पूरा ही चेंज हो जाएगा सो z विल एक्चुअली बी इक्वल टू 50 का स्क्वायर मतलब 62500 प्लस द स्क्वायर ऑफ xl माइनस xc which is already obtained to be 161.5 राइट सो ये 161.5 जो है उसका स्क्वायर करके हमको इसमें यूज करना है और फिर उसके बाद z निकालना है और वो z वहां पे डालना है जिससे हमको RMS करंट मिल जाएगा समझ सकते हो ठीक से व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 161.5 जस्ट चेक फ्रॉम द लॉग टेबल और जस्ट विल डू इट बाय कैलकुलेटर टू सेव द टाइम देखो 161.5 multiplied by 161.5 again which comes out to be 26,082 okay so here it we get it as 26,082.25 छोड़ो उसको और ये जो है 62500 as it is if we add these up then we can just get it as तो इसमें प्लस कर देंगे देखो ठीक से
1082 plus 62500, which happens to be 88582, right? So 88582, and now we have to just get that square root of this. ओके तो इसका अगर स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, yes, it can be easily found out by using the log table. So it will be 8.8582 into 10 raised to 4. ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो लॉग टेबल के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट का एक टेबल है जो कि 1 to 10 वाला है। तो उसमें 8.85 का 8 में मीन डिफरेंस देखना है। देखो ठीक से 8.8 का 5 में जो मिलता है 2.992 और उसका 8 में अगर मीन डिफरेंस देख लेंगे जो कि 1 है यहाँ पे, तो वो 2.993 आ जाएगा। So it's going to be 2.993 and that is multiplied by 10 raised to 2 which makes it as 299.3, मतलब almost 300 ही हो गया। ठीक है, 300 ohm। and now if we just replace this Z by this 299.3 और just take it as 300 approximately, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सिंपली 11/30। how much it comes out to be? तो वो तो 0.36 मिल रहा है। यस, यहाँ पे हमने गलती किया। देखो ये ठीक से, ये जो है ये 0.3185 जो है उसमें 10 raised to 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक 2 डिजिट पॉइंट आगे जाएगा, मतलब पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आएगा 31.85 बनेगा वो एक्चुअली, जिससे वो डिफरेंस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो डिफरेंस चेंज करो। एक्सएल का वैल्यू जो हमारे पास है ऑलरेडी 157 और एक्सी का जो वैल्यू है वो 31.85 है। तो इन दोनों का डिफरेंस प्रॉपर ठीक से निकालो और वो डिफरेंस यहाँ पे डालो, उसका स्क्वायर करो और इसमें ऐड करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल के वो जो भी आएगा तो उससे ERMS को डिवाइड करो, तो उससे तुमको एक्चुअली फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है which is going to be the RMS current in the circuit. Okay, chalo, let us go to the next question now. Yes, the question number 19. Find the capacity of a capacitor which when put in series with 10 ohm resistor makes the power factor equal to 0.5. Okay, देखो, find the capacity of a capacitor which
when in series with a 10 ohm resistance makes the power factor कितना चाहिए हमको 0.5 चाहिए. ओके एंड जो ईएमएफ है वो दिया हुआ है 80 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज सप्लाई जो है वो दिया हुआ है. तो 80 वोल्ट उसका आरएमएस ईएमएफ है. ठीक है, तो देखो ठीक से ई आरएमएस इज गिवन ऑलरेडी टू बी 80 वोल्ट एंड एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन 100 हर्ट्ज, नो डाउट. ओके, और देखो क्या दिया हुआ है. तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन इट इज सीरीज विद द 10 ओम रेजिस्टेंस. तो मतलब देखो ये सपोज ईएमएफ यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पे कैपेसिटर्स कनेक्ट किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया. अभी इस सर्किट का पावर फैक्टर हमको कितना चाहिए 0.5 चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर? डू यू नो? पावर फैक्टर मतलब cos phi से इसको डिनोट करते हैं एंड पावर फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू R अपॉन Z. याद है? R upon Z. This is the formula for power factor. And what is the formula for Z? Z is actually equal to root of R square plus XL minus XC का whole square. Correct है? But as there is no XL here, XL है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए फिर Z का वैल्यू क्या बनेगा actually? root of R square plus XC का whole square. क्योंकि XL is going to be 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली XC का स्क्वायर. दैट्स इट. तो अभी यहाँ पे अगर हम Z यूज करेंगे, ये वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा देखो. सो वी कैन गेट दिस एज पावर फैक्टर दैट इज cos phi which is going to be R upon root of R square plus XC square. करेक्ट है? So this is R square plus XC square. But we want the power factor to be 0.5. तो this power factor can be 0.5. तो यहाँ पे हमने डाल दिया पावर फैक्टर के बदले 0.5, तो यहाँ पे आएगा R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, जिसमें अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायरिंग, क्योंकि 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, नो डाउट. तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, ऐसा मिलेगा, जिसको स्क्वायरिंग करने के बाद हमको मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको मिलेगा R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर, which gives in the next step that is see here XC स्क्वायर इस तरफ रखा, R स्क्वायर को वो साइड में डाल दिया, तो उससे हमको ये मिलेगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, which means XC स्क्वायर must be equal to 3R स्क्वायर. ओके, तो ये कंडीशन तो हमको मिल गया, चलो ठीक है. बट यहाँ पे R दिया हुआ है, देखो 10 ओम दिया हुआ है, so we can just put it here, but R is given to be 10 ohm, so we can just put it here and get this XC square is equal to 3 times of 10 square, मतलब 100, which means XC must be equal to, yeah, just we can just find out the root on both sides, so as to get XC equal to root 3 times of R, and just we get this XC actually equal to root 3 times of 10, because R is going to be 10. That means XC must be equal to 10 root 3. 10 root 3 मतलब root 3 का वैल्यू अगर डाल देंगे 1.732 into 10, so it becomes 17.32. This is the value of XC. But already we know that XC is equal to क्या होता है? XC is equal to 1/2 pi FC होता है, करेक्ट है नहीं? तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये 1/2 pi FC का वैल्यू मतलब दिया हुआ है, तो इससे हमको मिलेगा 17.32 is equal to 1/2 pi FC, जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो C निकालना है, राइट? तो C को इस तरफ लेके आएंगे और ये 17.32 को नीचे लेके जाएंगे, इससे हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो ठीक से
So C will actually be equal to 1 upon 2 pi f into ये xc. Just okay, just keep this xc as it is here. So we can just write this, rearrange this formula first, and then put the value of xc here. So C will actually be equal to 1 upon 2 into 3.14 into f, that is frequency of the AC source, which is 100, and that is multiplied by xc, which is already obtained here to be 17.32. So ये हो गया 17.32. Okay, and just work out all these values. ये कैलकुलेशन अगर हम कंप्लीट करेंगे, इससे हमको C का वैल्यू मिल जाएगा आराम से. Let us do it here. देखो ठीक से, सबसे पहले 2 इंटू 3.14 इंटू 17.32 करके लेंगे. तो 2 इंटू 3.14 कितना बनता है? 6.28, राइट? That should be multiplied with 17.32. So this is 17.32, which comes out to be 108.76. Okay, 108.76. तो उसको हम लिख सकते हैं आराम से. So it will be 1 upon 108.76, and that is to be multiplied with this 100 also. That means 10 raised to 2. But we can just write it as 1.0876, and that is multiplied by 10 raised to 4. And this 10 raised to 4 can be taken in the numerator as 10 raised to minus 4. और 1.088 का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा. 1.088 का रेसिप्रोकल जो बनता है 0.9191. ओके, 0.9191 into 10 raised to minus 4, and that is going to be in farad. Okay, ये farad में मिल गया. So this farad in farad, if you want to convert it into microfarad, then we will have to bring it 10 raised to minus 6 here. So in order to do that, we can just write it as 91.9, and that will be in microfarad then. So ये 91.9 microfarad, this should be actually going to be the correct option. Yes, so the answer given here is 9.2 into 10 raised to minus 5 farad. करेक्ट है. हमने उसको माइक्रोफैराड में कन्वर्ट किया तो 91.9 माइक्रोफैराड मिल गया. It's okay if you want to write it in terms of 10 raised to minus 5 farad, then we can just shift one digit point in this right side so as to get this 9.19, which can be written as 9.2 approximately into 10 raised to minus 5, and that is in farad. No doubt. Okay, just take the screenshot of this fast. Okay, चलो ठीक है. So let us stop here. Thank you all of you.